Good evening, everyone. I welcome you all in SP Smart Hybrid Schooling System, and today we are entering into the 10th day, and we are starting with the new topic that is fill in the blanks. I hope we together will be discussing on the things, and we will be reaching on the conclusion. So we will be discussing each and everything, and I will be letting you know that how you have to go with fill ups, and they are the most important question that has been taken from the previous year NDA examination. So bacha, let's go with the first question and let's understand the first question as well. Okay, so the very first question which is given, it says dash from the campaign have been used to buy medical supplies, food and education material. What, as per you, what would be the right answer? Listen to me properly. I'm repeating the question again. This is a tricky question. Dash from the campaigns have been used to buy medical supplies, food, and educational material. Revenue. No. The Proceed. proceeds. What? Proceeds. Proceeds. What do you mean by proceeds? Why the right answer would be proceeds? सर इसका मतलब होता है जो हमने पैसे सेल से कमाए होते हैं. नहीं, जब हम पैसा सेल से कमाते हैं वो हमारी इनकम होती है, वो हमारा रेवेन्यू होता है. प्रोसीड इज दी तो किसी एक्टिविटी से पैसे कमाए हो. okay, it is money that we have earned from an event. So in this question, an event is campaign. ठीक है, proceeds from the campaign have been used to buy medical supplies, food and educational material. प्रॉफिट भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रॉफिट होता है मुनाफा, राइट. प्रोसीड का मतलब होता है टू मूव. सो द राइट आंसर वुड बी इवेंट. इज इट क्लियर बच्चे? Yes. इज देयर एनी डाउट? Yes. Okay, Yes, sir. coming to the next question. See, I don't want you people to answer in the air. I want you people to understand the question really very well. If you have opened the PDF in your mobile phone, kindly don't do that. Let us discuss and let us understand the question, then we will be coming to a right conclusion with the answers. Okay, so the next question is, when I joined the flying club, my instructor gave me the first lecture on the dash of flying. What would be the right answer? इसका ये So मतलब इसका ये Basics. Basics. okay, why basics? सर क्योंकि पर हमेशा बेसिक से स्टार्ट किया जाता है ताकि वो बेसिक से ही बिल्ड होते होते Okay, बेसिक्स का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज की सबसे किसी भी चीज की बिल्डिंग ब्लॉक नॉलेज जो होती है. वेरी गुड, फंडामेंटल. ओके, आई गिव एन एग्जांपल. आप में से किसी को स्कूटी या कार चलाना आता है? Yes, sir. Okay, So, so the very first day you started driving or starting learning driving, your father or your instructor, he told you about the things that are required in driving, right? He told you this is brake, this is accelerator, this is steering, this is horn, this is gear, you need to put first gear like this. This was the instruction which was given by your father or the instructor. So what was it? It was basic, it was the fundamental of a car. So it is better to know the basic first before starting up with something. So the right answer would be basic. Okay, coming to the next question. The next question says, you must dash your house in order before you venture to offer advice to others. organize. Organize. How many of you are saying organize? How many of you are saying organize? Okay, Apurva is saying organize. I'm saying organize. Jagnoor is saying organize. Okay, Jagnoor. Or what? Who else? Who else? Janvi. Why are you sleeping today, bachche? Come on, class, wake up. What The would be the answer? organize. No, the right answer would be set. ऑर्गेनाइज हम फिजिकली करते हैं, अरेंज हम फिजिकली करते हैं, ब्रिंग का मतलब होता है लाना. सेट इज अ वर्ड
कि हमें यू मस्ट सेट योर हाउस, अपना घर पहले सेट करो, दूसरों को मशवरा देने से पहले, दूसरों को एडवाइस देने से पहले यू शुड सेट योर ओन हाउस, राइट? गॉट इट क्लास? यस सर। यस सर। ओके, सर सेट तो होगा, पर बाकी अरेंज और ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो सकता? अरेंज और ऑर्गेनाइज, जब चीज़ें डिसऑर्गेनाइज होती हैं, अब घर में गए हो, आपका घर जो है वो मेस्ड अप हुआ है, तो यू विल बी यूजिंग अरेंज एंड ऑर्गेनाइज फॉर दैट थिंग, बट द एप्रोप्रिएट इज टू सेट मतलब कि अपने घर को पहले सेट करो, यू नो, इट्स ए मोर क्लोजर वर्ड एज कंपेयर टू अरेंज एंड ऑर्गेनाइज। अरेंज एंड ऑर्गेनाइज आर द सिनोनिम टू, ये दोनों सिनोनिम भी तो हुए हैं। गॉट इट? यस Okay. So moving to the question number 4. The question number 4 says, fact is often stranger than dash. What would be the answer? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन। Beta, use thoda sa brain. You will be getting the answer. Don't run. Okay. Who said fiction? फिक्शन। सर मैम। Okay. Fiction. Why? What is the reason behind it? I want reasoning behind it. I don't want you should guess and you should answer. रियलिटी बेस्ड होती है और फिक्शन यूजुअली हमारी इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है। बेसिकली द वेरी बेसिक रूल इज, फैक्ट का एंटोनिम क्या होता है? फिक्शन ही तो होता है बच्चे। फैक्ट मतलब रियलिस्टिक, फिक्शन मतलब विच इज नॉट रियलिस्टिक, इमेजिनेशन इज एज पर योर इमेजिनेशन, राइट? तो जो क्लोजर है वो ये है, क्योंकि फैक्ट का जो अपोजिट है, राइट, लिसन टू मी प्रॉपर्ली, इट वुड बी योर फिक्शन। गॉट इट? यस सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। Okay, coming to the next one. The next one says, it is becoming increasing difficult for a housewife. Okay, do understand the sentence. It is becoming increasing difficult for a housewife to pick up a genuine article from the crowd of the dash ones in the store. Who will make me understand this question? Raise your hand. सर Okay, go ahead. सर इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक हाउसवाइफ के लिए डे बाय डे डिफिकल्टी इंक्रीज हो रही है, जो आर्टिकल्स हैं उनको स्टोर में से पिक करने के कौन लिए। से आर्टिकल? सर जो रियल होंगे। Which word has been used over here? जेन्युइन। Underline this word. This is the prime word, right? So what would be the answer? सर डुप्लीकेट। सीरियस। Who said duplicate? Who said duplicate? क्यों बच्चे? Why it would be duplicate? Genuine क्या होता है? हम कहते हैं सर ना, रियल। हम कहते हैं ना, ये यार ये तो जेन्युइन प्रोडक्ट है, ये जेन्युइन मेडिसिन है, यहाँ पे ना जेन्युइन प्रोडक्ट मिलते हैं। तो जेन्युइन का राइट। हाँ, जेन्युइन, राइट, मतलब जेन्युइन मीन्स इट्स ए क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है? अब जेन्युइन का जो क्लोजर एंटोनिम है वो क्या है? फेक। यस, सो फेक वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. You need to see which is more appropriate between two in fill-ups. Okay? डुप्लीकेट क्या होता है? डुप्लीकेट इज रेप्लिका. ओके, आई गिव एन एग्जांपल. आपने अपना लाइसेंस बनवाया, यू लॉस्ट योर लाइसेंस एंड यू अप्लाइड फॉर द डुप्लीकेट वन. डुप्लीकेट वन इज द रेप्लिका. डुप्लीकेट किसका एंटोनिम है? ओरिजिनल, राइट? तो जेन्युइन का बेटा क्या होगा यहाँ पे? अगर यहाँ पे फेक नहीं होता और ये तीन ऑप्शंस होते तो इसका आंसर डेफिनेटली डुप्लीकेट होता, बिकॉज डुप्लीकेट इज मच क्लोजर टू द जेन्युइन वन. बट यहाँ पे एंटोनिम क्या है इसका, जेन्युइन का? फेक. तो रेप्लिका कैसे हो सकता है? जेन्युइन का हो सकता है रेप्लिका?
बच्चे ये ऐसा नो नहीं हो सकता ना, तो प्लीज नो सर। don't run. I don't want you people to run. These are very precious days. Please understand the question, then answer. Okay, take your time, understand the question, then answer, don't run. Okay, the next question is, his hustic and robust humor was an embarrassment to the dash sensitivity of the young ladies. So what do you mean by rustic and robust humor? What do you mean by this line, rustic and robust humor? Humor क्या होता है क्लास? बच्चे व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमर? समझना। नो, किसने कहा समझना? ह्यूमर का क्या मतलब होता है? सर मजाक करना। मजाक, वेरी गुड, हास्य और मजाक। हम मजाक लिखते हैं, मेरी हिंदी शुद्ध नहीं है इतनी, राइट? ओके, रस्टिक एंड रोबस्टिक मीन्स, अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एम्बैरसमेंट, ठीक है? अब कभी हम ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं जहाँ पे हमें मीनिंग नहीं पता, ठीक है? अब हम उसमें गेस करके चलते हैं, मगर गेस के लिए हमें उसके जो साथ वाली चीज़ें हैं उनको देखना पड़ता है। यहाँ पे एम्बैरसमेंट है। अब एम्बैरसमेंट इज ए पॉजिटिव वर्ड और ए नेगेटिव वर्ड? नेगेटिव। हम कब एम्बैरस करते हैं, हम कब एम्बैरस होते हैं? जब हमने कोई चीज़ गलत की होती है। यस और नो? ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना? यस। तो रस्टिक एंड रोबस्टिक ह्यूमर जो है वो है गंदा मजाक। गंदा मजाक करेंगे तभी तो एम्बैरस फील करेंगे। अच्छे मजाक में कौन एम्बैरस फील करता है? ठीक है, इसका मतलब होता है दिहायती मजाक, विच इज नॉट एप्रोप्रिएट, ठीक है? इनएप्रोप्रिएट ह्यूमर, गॉट इट? अब जो उसका इनएप्रोप्रिएट ह्यूमर है, मजाक है, वाज ए एम्बैरसमेंट टू दी डैश सेंसिबिलिटी, मतलब कि यंग जो सेंसिबल लड़कियां हैं उनके लिए। सो व्हाट वुड बी द आंसर? डेलीगेट। ओके, व्हाई नॉट फ्रजाइल? व्हाई नॉट फ्रजाइल? आई नीड आंसर्स फ्रॉम यू बच्चे। फ्रजाइल का क्या मतलब होता है? ओके, कम टू द Easily पॉइंट। broken. विच कैन बी? Easily broken. यस, ब्रोकन नहीं हो सकता। व्हाई नॉट सॉफ्ट? व्हाई नॉट सॉफ्ट? Soft means texture, right? Why not sober? Okay, you are stuck between two options, delicate and sober. अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर है? क्लास? Sir, delicate. Delicate, very good. क्यों? I need answers, I need reasons. क्यों? Why? है, okay, you're right. Why? Why? Sir, because यहाँ पे delicate ही use होगा ना। क्यों? सोबर भी तो हो सकता है ना? सोबर क्यों नहीं है? क्यों है? ओके, ठीक है, मैंने मान लिया है। यू आर स्टडिंग वेरी मच। प्लीज जस्टिफाई व्हाई डेलिकेट इज द आंसर। क्योंकि बच्चे सोबर का मतलब होता है सीरियस। डेलिकेट, फीमेल्स आर मच डेलिकेट। उनकी सेंसिबिलिटी की बात हुई है, उनकी नेचर की बात नहीं हुई है। अगर नेचर होता तो सोबर होता। ही इज हैविंग ए सोबर नेचर, ही हैज ए serious nature, that means. Got it? Yes. Yes. You got it? Okay. Yes, sir. Let's begin with the 7th one. His teacher said that his comment on his performance was not to demoralize him but to dash him. Persuade. What? The encourage. Why encourage? Why encourage?
तो क्योंकि वो उनको डिमोरलाइज तो नहीं करना चाहते थे, बट वो उसको एनकरेज करना चाहते थे। ठीक है, अनकरेज का क्या मतलब होता है? डीमोरलाइज हो गया डीमोटिवेट, ठीक है। एनकरेज का मतलब होता है किसी को किसी चीज के लिए मोटिवेट करना। यस बच्चे, ये तो इजी इजी से क्वेश्चन है, right? You're answering, but I don't want the answers, I want reason behind it. Got it? Okay. Yes. Let's move to next question. Let's talk about question number 8. Diseases are easily dashed through contact with infected animals. अब इसका जो सही आंसर था ना, एप्रोप्रिएट, वो है ट्रांसमिट, ठीक है। ट्रांसमिट इज ट्रांसमिशन एंड ट्रांसमिट इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है। तो ट्रांसमिटिंग के बाद कौन सा क्लोज मीनिंग होगा बच्चे? डिसीजेज आर इजीली ट्रांसमिटेड, सी डिसीजेज, ट्रांसफर्ड। यस यस यस, और अगर यहाँ पे ट्रांसमिटेड होता फिर आंसर होता ट्रांसमिटेड। गॉट इट? Yes. Okay, move to the next question. A number of scientists, please listen to it carefully. A number of scientists in the country think that they are on the dash of a major breakthrough. Make me understand the question. हमारे देश के बहुत सारे साइंटिस्ट सोचते हैं हम ब्रेक थ्रू के डैश में खड़े हैं। What? Sir, threshold. थ्रेशोल्ड। ओके, थ्रेशोल्ड का क्या मतलब होता है बच्चे? सीमा. क्या होता है? सीमा. सीमा. सीमा? गूगल खोला है? No sir. Sir, ये मैंने पढ़ा था. ओके, थ्रेशोल्ड मींस एट द बॉर्डर, हम बॉर्डर पे खड़े हैं। ठीक है। पेरिफेरी क्या सर होता वो है? तो मतलब पेरिफेरी का भी मतलब यही हो गया नहीं, कि हम किसी भी चीज पैराफेरी का लिमिटेड मतलब एरिया। नहीं, पैराफेरी का मतलब हो गया इट्स अ सरकमफेरेंस, राइट। गेट भी हो गया दरबार पर, जहाँ पे ओपन। यस। हाँ। फ्रंटियर हो गया सामने। तो हम एज पर द सेंटेंस, ए नंबर ऑफ Gate पे। साइंटिस्ट इन द कंट्री थिंक दैट दे आर ऑन द ब्रिम। गेट पे। ब्रिम मीन्स नो, ब्रिम मीन्स थ्रेशोल्ड ऑफ ए मेजर ब्रेकडाउन, हम बॉर्डर पे खड़े हैं एक मेजर ब्रेक थ्रू के। गॉट इट? यस सर। Okay, this is a easy one. Once he has signed the agreement, he won't be able to. एक बार उसने अगर agreement sign कर दिया तो वो he won't be able to back out. Back out. Very good. So बच्चे, these are some of the important questions which has been discussed by me with you, but you know you really have to work with the vocab. The stronger vocab you have, it would be pretty much easy for you to go with the exam. So thank you.